آگے بڑھتے ہیں۔ مستحقین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم اب گھر بیٹھے ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں پروگرام سے بے نظیر کی روح کو سکون ملے گا۔ جی ہاں، ڈیجیٹل والیٹ کا اجرا بڑی پیش رفت ہے۔ رمضان کی اب آمد ہے۔ ہمارے پاکستانی افراد کو، بھائیوں کو، بہنوں کو رمضان شریف میں ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے 5,000 روپے فی خاندان کا جو انتظام کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 35 لاکھ فیملیز کو 10,000 روپیہ پنجاب میں اس دفعہ ہمارے طرف سے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچانک بڑی خوشخبری آ چکی ہے آپ تمام لوگوں کے لیے۔ آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ آج سے 14,500 روپے کی قسط آپ کو ملنا بھی شروع ہو چکی ہے۔ جی ہاں، نئی قسط کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ آپ تمام لوگ بھی اپنی یہ قسط وصول کر سکتے ہیں، لیکن آپ تمام سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بھئی جو بندہ بھی ویڈیو سن رہا ہے اسے پیسے مل جائیں گے، لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ قسط بھی جاری کی جاتی ہے، لوگوں کو پیسے مل بھی رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو صرف اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کن لوگوں کے لیے قسط جاری کر دی گئی ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ بھی آج سے قسط وصول کر سکتے ہیں۔ بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط کا آغاز ہوا ہے، اور اس نئی قسط میں آپ کو 13,500 روپے کی بجائے 14,500 روپے ملنا بھی شروع ہو چکے ہیں۔ تو اپنی یہ نئی والی قسط آپ نے کہاں سے وصول کرنی ہے؟ ریٹیلر شاپ سے آپ کو یہ قسط مل سکتی ہے، یا یہ قسط لینے کے لیے آپ کو کیم سائٹ پہ جانا پڑے گا، یا پھر آپ ATM سے پیسے لے سکتے ہیں، یا جن لوگوں کو والیٹ سم ملی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی اکاؤنٹ والی سم ملی ہے، تو کیا اس اکاؤنٹ والی سم میں پیسے آ جائیں گے؟ تو یہ سب کچھ آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تمام وہ لوگ جو نئے اہل ہوئے ہیں، جو 2026 میں اہل ہوئے ہیں، تو ان تمام لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے آ گئے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کافی لوگ تو ایسے ہیں جنہیں ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ اہل ہوئے ہیں، ان کے پیسے آئے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے، آپ گھر بیٹھے خود چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اہل ہوئے ہیں یا نہیں، آپ کو پیسے ملیں گے یا نہیں، یا آپ کے کتنے پیسے اس بار آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ تھوڑا غور کریں، سمجھیں جو معلومات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور جس طریقہ کار پر ہم آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں اس پر چلتے ہوئے آپ اپنی رقم بھی لے سکتے ہیں۔ ویسے بھی ایسے تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں، خصوصاً شادی شدہ لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ بھی آ چکی ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے الگ رمضان پیکیج آ رہا ہے اس بار، اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے الگ رمضان پیکیج آ رہے ہیں۔ یعنی آپ کا صوبہ جو ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، پنجاب سے بھی آپ کو امداد ملے گی، مریم نواز صاحبہ بھی آپ کو امداد دے گی۔ اگر آپ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں تو سندھ حکومت بھی آپ کو امداد دے گی۔ اگر خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں تو خیبر پختونخوا حکومت بھی اس بار آپ کو رمضان پیکیج دے گی۔ بلوچستان سے بھی لوگوں کو یہ امداد ملے گی، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ امداد ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے بھی آپ کو رمضان پیکیج ملے گا۔ تو یہ کتنی رقم اس بار آپ کو ملنے والی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ رقم ہے، کیونکہ یہ ایک فیملی کو رمضان پیکیج جاری کیا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بھئی جن لوگوں کے شناختی کارڈ ہیں ان لوگوں کے تو مزے ہی مزے ہیں، کیونکہ شناختی کارڈ کے ذریعے آپ کی رجسٹریشن ہوگی، اور آپ شناختی کارڈ کے ذریعے ہی یہ امداد وصول کر پائیں گے۔ لیکن یہ امداد لینے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر وہ طریقہ کار آپ کے پاس صحیح طور پر نہیں پہنچا تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، پھر آپ کو یہ امداد نہیں ملے گی۔ اس لیے ہم آپ کو وقت سے پہلے بھی یہی بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے صحیح طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ اب ایسے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو کوئی لنک ملے یا کوئی ایسی جھوٹی خبر پھیلا دے کہ بھئی آپ نے فلاں کوڈ پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر ابھی سے بھیجنا ہے، اور آپ بھیجنا بھی شروع کر دیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ بھئی ہمیں تو اس بار امداد ضرور ملے گی، ہم نے کچھ 7-8 میسج فلاں کوڈ پہ بھیج دیے ہیں۔ تو بھئی ایسا ہرگز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ایک الگ سے طریقہ کار ہوتا ہے، اور آسان سے آسان ترین طریقہ کار ہوتا ہے، جس کے بارے میں اگر آپ کو صحیح بندہ معلومات دے رہا ہے، صحیح پلیٹ فارم سے آپ کو معلومات مل رہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ 5 منٹ کے اندر رمضان پیکیج کا بھی حصہ بن سکتے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی اہل ہو سکتے ہیں، اور آپ کو امداد بھی جاری کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنی چھوٹی سی بات اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ بھئی صرف وہی حقیقت جو حکومت کی جانب سے جاری کی جاتی ہے وہی آپ تک
तक पहुंचे तो सब कुछ आप मुमकिन कर सकते हैं। अगर आप एरे वेरे नथु खैरे की बात पे भी चले जाएंगे तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आइए इस पर मजीद बहस नहीं करते, तफसील की जानिब आपको लिए चलते हैं। उससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको हकीकी अपडेट्स मिले, आपको आने वाले रमजान पैकेज में जरूर शामिल करवाया जाए, आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या हुकूमत के किसी भी आने वाले नए इमदादी प्रोग्राम की फटाफट मालूमात मिले, तो उसके लिए भाई आप अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मालूमात सुन रहे हैं या पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो अभी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको हर प्रोग्राम की मालूमात घर बैठे मिलेगी, सब कुछ हकीकत होगा और रजिस्ट्रेशन से लेकर इमदाद लेने तक का तरीक़ेकार खरे खरे और आसान आसान अल्फाज में आपको बता दिया जाएगा। और हाँ, हम अक्सर ये भी कहते हैं कि सिर्फ हकदार लोग जिनको इमदाद चाहिए वही हमारी मालूमात सुने, बाकी जिन लोगों को कोई इमदाद नहीं चाहिए हुकूमत से वो बेशक हमारी वीडियो ना देखें, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि गरीब आवाम के लिए, मुस्तहिक आवाम के लिए और हकदार लोगों के लिए जब इतना पैसा हुकूमत खर्च करती है, इतनी इमदाद पहुंचाना चाहती है, तो फिर सिर्फ हकदार लोगों तक ही ये इमदाद पहुंचनी चाहिए। तो आइए इसकी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं, थोड़ा सा गौर जरूर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। देखें जी, प्रोग्राम चाहे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हो, तालीमी वज़ीफ़ प्रोग्राम का हो, रमज़ान पैकेज हो, मुफ्त राशन प्रोग्राम हो या अलग अलग स्कीम्स हों, जैसा कि पंजाब के लोगों के लिए मुख्तलिफ बिजनेस लोन स्कीम्स जारी किए गए हैं, मतलब बिलासूद कर्ज अवाम के लिए जारी किया जाता है, या वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से भी नौजवानों के लिए मुख्तलिफ बिलासूद कर्ज की स्कीमें जारी की जाती हैं। कोई भी प्रोग्राम हो, उसकी रजिस्ट्रेशन या उसमें अहल उस वक्त आप हो सकते हैं जब आप हकीकी तौर पर मालूमात सुन रहे हैं और हकीकी मानों में उस पर अमल भी कर रहे हैं। अब एक प्रोग्राम है, फर्ज किया वो पंजाब की गरीब आवाम के लिए है या पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए है, चाहे आप किसी भी कोना से ताल्लुक रखते हैं और आप हकदार भी हैं, तो वहां पर बैठे बैठे वो इमदाद हुकूमत आप तक नहीं पहुंचा सकती जब तक कि आप खुद हुकूमत को जाके नहीं बताएंगे कि भाई हमें इमदाद चाहिए। अब ऐसा भी हम नहीं कह रहे कि आप अभी सवारी लें, टिकट लें और जाएं शहबाज शरीफ को बोलें भाई हमें इमदाद चाहिए, ऐसा भी नहीं है, बल्कि इसके लिए आसान तरीक़ेकार होता है, आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। इसी तरह एक छोटी सी और वाज़ेह मिसाल भी दे दें ताकि आपको मजीद समझने में आसानी हो। एक छोटा बच्चा है, जब वो प्यासा होता है, भूखा होता है, तो वो चाहे बोल नहीं सकता, वो रोता है और उसकी माँ जो है उसे दूध पिलाती है, उसे खाना देती है। क्यों? कि उसने, उस बच्चे ने तलब की है और उसने जो कुछ मांगा है उसको दे दिया गया है। तो अब आगे चलते हैं। आपको बता रहे थे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से खुसूसी तौर पर कि इसकी रजिस्ट्रेशन जब आपने करवाई होगी, जब आपने सर्वे मुकम्मल करवाया होगा, तो वही एक तलब थी जो कि आपने हुकूमत को बताया कि भाई आपको इमदाद चाहिए। आपने सर्वे करवाया, आपने सारा डेटा हुकूमत को दिया, आपने अपने बारे में सब कुछ उन्हें बता दिया कि भाई हमारे पास इतनी गायें हैं, इतनी भैंसें हैं, हमारी इतनी दौलत है, हमारे माहाना अखराजात इतने हैं, हमारे बच्चे इतने हैं और हमारी माहाना आमदन इतनी है, सब कुछ आपने बता दिया। तो फिर हुकूमत देखेगी कि भाई इसके पास इतनी मालो दौलत है या इसके पास कुछ नहीं है, इसका तो सिर्फ गुजारा ही चल रहा है, या ये इतना गरीब या इतना अमीर है। वो आपको याद होगा कि एक PMT स्कोर होता है जिसे गुर्बत का स्कोर बोला जाता है। तो जब जांच पड़ताल से आपका वो पूरा प्रोसेस गुजरता है तो वाज़ेह हो जाता है कि आप कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितने तलबगार हैं, कितने तलबगार नहीं है। तो जब ये सब कुछ वाज़ेह हो जाता है तो फिर हुकूमत के लिए भी आसानी हो जाती है कि वो इमदाद जारी करने में देखते हैं कि कितने लोग अहल हैं, कितने लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको वो इमदाद जारी कर देते हैं। तो हमने इस हवाले से आपका काफी वक्त लिया, इसके लिए माजरत खा है, लेकिन हमारा सिर्फ मकसद एक ही है कि ऐसे लोग जो इस तरह की रजिस्ट्रेशन से दूर रहते हैं, गफलत का शिकार रहते हैं और फिर भी गिले शिकवे करते रहते हैं कि भाई हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, तो ये तमाम तर मालूमात और बहस व मुबाहिसा जो है उन्हीं लोगों के लिए किया गया कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन भी करवानी होती हैं, आपने सर्वेज वगैरह भी करवाने होते हैं। बहरहाल अब अपने मौजू की तरफ वापस चलते हैं। आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि आज से बाकायदा तौर पर नए अहल होने वाले अफराद, नई अहल होने वाली खवातीन के पैसे जो हैं वो जारी करने का फैसला कर लिया गया है। आज से वो तमाम लोग जो 2026 में अहल हुए हैं या जिनकी किस्त 2026 में ही पहली किस्त जारी हो रही है, उनके पैसे आना शुरू हो चुके हैं। उनके अकाउंट्स में 13,500 रुपए नहीं बल्कि
14,500 रुपए की पहली किस्त आ रही है, जो कि 2026 में इजाफे की वजह से जो है आपको दी जा रही है, और एंड तक के लिए आपको यही 14,500 रुपए की हर किस्त मिला करेगी। तो एक बार पहले भी आपको बता दिया कि ये किन लोगों के लिए 14,500 रुपए की किस्त आज से शुरू हुई है। ये ऐसे लोग जो पहली बार इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और जिनकी अहलियत 2026 में ही कंफर्म हुई है। अभी आप भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है या अपना सर्वे जो है कुछ अर्सा पहले 3-4 माह पहले करवाया हुआ है, तो भाई अभी आप 8171 वेब पोर्टल पर चले जाएं और अपनी अहलियत वहां से भी चेक करें। BISP की हेल्पलाइन है 0800026477, इस पर भी कॉल कर लें, वहां से भी आप मालूमात ले सकते हैं। अगर आप अहल हुए हैं तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी किस्तें बाकायदा तौर पर आना शुरू हो चुकी हैं। आप अपनी 14,500 रुपए की किस्त करीबी रिटेलर शॉप से अभी वसूल कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली किस्तें हैं, अभी तक वॉलेट सिम में जो है तमाम खवातीन तक नहीं पहुंची, तो इस वजह से वॉलेट सिम या बैंक ATM से ये किस्त आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, इसके साथ साथ जो पुरानी बेनिफिशरीज हैं, जो पहले से पैसे ले रही हैं औरतें, उनकी आप जानते हैं कि 2025 वाले पैसे भी रुके हुए हैं। कफालत प्रोग्राम की किस्त भी रुकी हुई है, जो कि 13,500 रुपए की आखिरी किस्त थी, और साथ में बच्चों के वज़ह भी रुके हुए हैं। तो ये टोटल जो 2025 वाली 3 किस्तें बनती हैं, बच्चों की 2 किस्तें और कफालत प्रोग्राम की 1 किस्त, उस हवाले से भी बड़ी खुशखबरी है कि इंशाल्लाह 26 जनवरी 2026 से आप तमाम लोगों को सोमवार वाले दिन से वो वाली किस्तें भी मिलना शुरू हो रही हैं। उस किस्त के हवाले से आपने थोड़ा सा मोहतात भी रहना है, क्योंकि आपकी बड़ी रकम आ रही है, तो अपनी किस्त पहले चेक करवाएंगे जब भी, क्योंकि वो किस्त जो है आपको इंशाल्लाह कैंप साइट से मिलेगी, रिटेलर शॉप से नहीं बल्कि कैंप साइट से मिलेगी, अभी तक जो बताया गया है। अगर इसमें कोई तब्दीली होती है तो वो भी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो हम आपको जरूर बता देंगे। तो 26 जनवरी से आप अपनी वो किस्तें वसूल करने के लिए जब कैंप साइट जाएंगे तो वहां पर इंशाल्लाह आपका स्क्रीनिंग का मरहला भी होगा। स्क्रीनिंग एक ऐसा अमल होता है जिसमें आपको आपके पैसे चेक करके बता दिए जाते हैं, एक टोकन पे लिख कर दे दिए जाते हैं कि भाई आपके अकाउंट में इतनी रकम है, तो आप वो पूरी रकम गिनकर वसूल करेंगे। फिर जब आपको पता चल जाता है कि भाई आपके अकाउंट में इतनी रकम आई हुई है, तो वो रकम लेने में आपको कोई मसला नहीं आता। अगर उससे कम रकम आपको दी जाती है तो जहरी सी बात है वो आपकी रकम काट रहे हैं, और फिर इस कटौती का ज़ाला आप फौरी तौर पर वहीं कर सकते हैं। BISP की ऑफिस से रजू करके उनकी शिकायत दर्ज करवा के आप अपनी कटौती की गई रकम भी वापस ले सकते हैं और फौरी अजाला करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो जनवरी था मार्च 2026 तक की किस्तें होंगी वो तो बाद में आपको मिलेंगी, पहले आप ये जो रुकी हुई किस्तें हैं ये वसूल करें। हाँ, उसके लिए ये भी है कि ऐसे लोग जो सिम के लिए अहल हैं वो सिम भी अपनी फौरन वसूल करें BISP की ऑफिस से, और जिन जिन लोगों ने सिम ली हुई है वो कमेंट्स में यस लिख दें, ताकि उन्हें एक बड़ी खुशखबरी भी हम सुना सकें। अभी आप कमेंट में बताएं कि आपको सिम मिल चुकी है, और कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे। इसके साथ साथ अब आगे चलते हैं, आपको बता दें कि इस बार रमजान पैकेजेस आ रहे हैं, आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े रमजान पैकेजेस आ रहे हैं। बड़े बड़े से मुराद ये है कि सूबाई हुकूमतें अलग से प्रोग्राम दे रही है रमजान पैकेजेस के, और वफाकी हुकूमत ने अलग से रमजान पैकेजेस देना है, तो पंजाब के लोगों के लिए निगहबान रमजान पैकेज अलग से होगा। तो इसलिए ऐसे हजरात जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन अलग से करेंगे, और जो वफाकी हुकूमत के रमजान पैकेज में शामिल होना चाहते हैं, सिंध से ताल्लुक रखते हैं, KPK से ताल्लुक रखते हैं, बलूचिस्तान से हैं, पंजाब से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, इस्लामाबाद से हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, कहीं से भी हैं, तो वो लोग जो हैं वो अलग से रजिस्ट्रेशन करेंगे। और रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार आपको कौन बताएगा? सिर्फ YouTube चैनल स्किल मेंटर ही आपको बताएगा। अगर आप अभी से ये मुकम्मल मालूमात लेना चाहते हैं, रमज़ान पैकेज में शामिल होना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप ही रजिस्ट्रेशन करें और आप ही अहल हो जाएं और आपको ही इमदाद मिले, तो भाई उसका सिर्फ एक ही हल है कि आप अभी से YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में थैंक्स लिख दें। इंशाल्लाह इस हवाले से हमें ये पता चलेगा कि कितने लोग हैं जिन्हें इस बार रमजान पैकेज की मुकम्मल मालूमात चाहिए। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में थैंक्स लिख दें। हम देखेंगे जो जो बंदा थैंक्स लिखेगा उसको ही मालूमात देंगे, और जो जो बंदा थैंक्स लिखने से पहले, कमेंट्स में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, सिर्फ उसको ही इंशाल्लाह मालूमात मिलेगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ हकदार लोगों तक ये मालूमात पहुंचनी चाहिए, और हकदार लोग ही इस रमजान पैकेज का हिस्सा बने, और हकदार लोगों को भी इस बार इंशाल्लाह 10 से 15,000 रुपए की रकम मिलने वाली है, तो ये हकदार लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए दोबारा हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप रमजान पैकेज की मुकम्मल मालूमात लेना चाहते हैं और रमजान पैकेज में शामिल होकर 15,000 रुपए लेना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में थैंक्स लिख दें। इंशाल्लाह हम आपका नाम पढ़ेंगे, आपको कमेंट्स में ही खुशखबरी भी सुनाएंगे, तरीक़ेकार भी बताएंगे। तो फिर देखते हैं कि कौन कौन जो है रमजान पैकेज में शामिल होना चाहता है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होती है कि हम
हम अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों तक सही मालूमात पहुँचाएं, हकीकी मालूमात पहुँचाएं, मुकम्मल तरीक़ेकार बताएं और आपको समझाएं कि आपने फलां कोड पर अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना है, इस तरीके से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, इस तरीके से अपनी इमदाद लेनी है। तो उसके लिए इंशाल्लाह हम हर वक्त आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खुशखबरी के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।